पहले हम आंसर बता रहे थे फिर आप तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था क्वेश्चन 5 का 5 of -72 एबल plus 24 एबल ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव ये तो का होगा ये लाइन पे है ठीक है तो ये आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 तक तो फिर आप इतना क्या होगा so let us begin discussion चलो रेडी है क्या कौन कौन है कॉलम में हमेशा वैशी दिया वैशी ओके दोनों रेडी है तो डिस्कशन के लिए जानते हो तो रेडी नहीं है Yes, sir. We are ready. तो गोइंग से रेडी है बाकी लोग शांत Yes, sir. okay so let us begin the discussion first of all first question is question number 5 5 the uniform electric field is given by this फिर अपना वीडियो बंद करो the uniform electric field is given by if PSS a Gaussian cube shown what is the electric flux to the top surface body so basically we have been given a situation like this so this is x y and z so we have been given a cube which is like this एक क्यूब ऐसा है okay this is x axis this is y axis and z axis it is an imaginary cube with the electric field as the electric field is given as 4I cap minus 3 into y square plus 2 j cap Newton per coulomb. So this is the electric field which is present in the surface. This surface में इतना electric field present. 4I cap minus 3y square plus 2 j. ठीक है. So first question is this an uniform electric field or non-uniform electric? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था तो बता सकते हैं Uniform. अगर ये ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
No, this is not uniform. This is non-uniform electric field. Why? Because this electric field is varying with y. जो हमारा y coordinate है, उसके साथ हमारा electric field change हो रहा है. That is why we cannot say it uniform. Uniform means the electric field should be same at all the points. But because here the electric field is varying with y, that is why the electric field is not uniform. ठीक है? Clear है? So अब Yes, sir. Okay. So ये हमारी electric field होगी. Now in the question what they have asked? They have asked us to find out the flux through top, bottom, left, back. ठीक है? तो बेसिकली सब फेस से उन्होंने फ्लक्स पूछे किस तरह. ठीक है? तो how to do this? पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते टॉप बॉटम कौन सा है. This is the top face, this bottom face, this is और क्या है? Left and back. लेफ्ट मतलब ये हो गया, बैक फेस. लेफ्ट में थोड़ा कंफ्यूज है. लेफ्ट फेस में तो जो अंदर वाला फेस है एंड बैक फेस. ठीक है, दिखाने की जरूरत है. तो ये अलग अलग फेसेस से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सॉरी हमको ये निकालना फ्लक्स. ठीक है. So how to go ahead about this? Suppose we consider this first. ये वाला एरिया पहले कंसीडर करें. So 5 1 कितना होगा? This is the integral E dot ds first of all. Now if you observe carefully, the electric field is changing with the y coordinate. That means यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है. ठीक है. If you try to plot this qualitatively, so electric field here will be little more. Here the electric field will be little less. Here it is even less. Or come. So the electric field is something like this. At the bottom, the electric field is the maximum, and with y coordinate, the electric field will decrease. ठीक है. ठीक है. So that is why we cannot say why, because y के साथ vary कर रहा है ना इसलिए. See at y equals to 0, electric field will be 4 I cap. ये y equal to 0 ना यहाँ पे y coordinate 0 इस point पे. And as you are going up, जो y coordinate का value increase करेगा, right? So that is why ये quantity ज़्यादा negative है. So electric field will decrease. समझ में आ गया? किसने पूछा था? Okay. So ऐसे होगा. So thus, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है 4 I cap minus 3 into y square plus 2. ठीक है. अभी हमको क्या करना होगा? Now we have to select a small element from which we will try to find out the electric flux. So there is a small element from which we are trying to find out the electric flux. ये distance y, इसका thickness dy. हाँ लिखो. थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम. So again इसका एरिया होगा a into dy and एरिया का वेक्टर होगा I. ठीक है. a dy into I. So then we can solve it. ये हो जाएगा 4a into integral dy. सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा. y का वैल्यू होगा 0 से लेके 1 तक, जो भी साइड है क्यों.
this pi out to be 4 ठीक है. ओके, ए का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा बेसिकली, तो इसलिए 4 into 16 बिकॉज साइड उसका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, 2 मीटर दिया हुआ. ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है? एनीवन हैज डाउट इन दिस? जो भी समझा मैंने. ऑल द स्टेप्स आर क्लियर फॉर एवरीवन? यस अविंशु, हमेशा, आयुषी. ठीक है. So thus we could find out the electric flux to the first phase. Now let us try to find out electric flux to this third phase. पीछे वाला phase से निकाल लीजिए. So again you can try to find it. So phi 3, this can be written as again integral E dot ds. ठीक है. So electric field will be how much? This will be again 4 I cap. 1 is 3 into y square plus 2 into j cap into ds. So again we have to take a small element like this. Why? Because again with this y axis the electric field is varying. सेम एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे जैसे ए डी वाई, बट इस बार जो हमारा ये होगा एरिया वेक्टर, दैट विल बी पॉइंटिंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. If I can just draw this curve here. For this first area the outward normal is like this. For the third area the outward normal is towards the left. That is why again if you solve this same answer आएगा बेटे माइनस आ जाएगा. This will come out to minus 16. ठीक है. ये क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? So why minus I cap? Why minus I cap? Because for the third phase, जो हमारा थर्ड फेज देख रहे हैं हम लोग, इसमें जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं? We take the direction of the outward normal, right? तो जो थर्ड वाला फेस है वो राइट लेफ्ट साइड में, तो इसका आउटवर्ड होगा इस तरफ, बाहर की तरफ. दैट इज व्हाई इट इज द नॉर्मल इज टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन. एंड इसको अगर हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल गया है तो माइनस आई कैप के डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. एंड जो हमारा फर्स्ट फेस है इसका आउटवर्ड नॉर्मल राइट में, तो इसकी वजह से हमको प्लस आई कैप लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो phi 1 phi 2 निकल गया. Now let us try to find out the flux through अंदर वाला सर्किट 2. इसके अलग से डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा और अच्छा दिखेगा. थोड़ा और अच्छा डायग्राम एंड और ही प्रिसाइज बनाते हैं. एक्चुअली जो एक्स एक्सिस 1 दिया था and then again if you draw this you
स्केल से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा अच्छा डायग्राम ऐसे कुछ है। दिस अगेन नेक्स्ट एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। now हमने ये दो फेस से निकाल लिया था। now let us try to go the inner अंदर वाला फेस से निकाल। तो उसका आउटवर्ड नॉर्मल का होगा फॉर दैट फेस आउटवर्ड नॉर्मल विल बी इनसाइड। ठीक है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट डायरेक्शन में है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन। तो अगर फाइटर निकालेंगे तो इससे इंटीग्रल E डॉट डी। So again we can take a small element। तो सोचेंगे इतना एलिमेंट ले रहे हैं अभी कैसे होगा। This is y, this is dy। So again it can be written as electric field is 4i cap minus 3 into y square plus 2 j cap dot ds। ds क्या होगा a dy। अच्छा नाउ इंटरेस्टिंगली आपको चूज करना है कि एरिया का डायरेक्शन क्या है, क्या आप लोगों को बताना। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ माय एरिया वेक्टर। यहाँ पे क्या लिखा है i cap j cap k cap माइनस i cap माइनस j cap माइनस k cap क्या लिखा है ये बता सकते हैं। यस फॉलो मी कैन यू टेल। सर के का प्लस k cap माइनस k cap माइनस के का माइनस के कैप। या सर यहाँ पे हम हाँ बोलिए नो सर ठीक। इसलिए माइनस करेक्ट समझ में गया। सो इसका आगे कितना होगा तो 0। ठीक है बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द x एंड y डायरेक्शन z डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है दैट इज व्हाई देयर इज नो फ्लक्स इन दैट डायरेक्शन। तो phi 2 will be 0। ठीक है इसका डायग्रामेटिक भी देखेंगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द राइट एंड कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में भी होगा जैसे j कैप वाला बट दोनों के लिए phi 0 है। ठीक है हाउ हाउ क्या आई डॉट के कितना होता है 0 होता है ना। अरे भाई डॉट प्रोडक्ट आई के कितना होता है 0 होता है। अरे भाई भूल क्या अभी 0 होगा ना 0। थोड़ा सोच के फिर पूछो। तो phi 2 विल बी 0। सिमिलरली अगर हम ये वाला सरफेस देखेंगे बाहर का 4 तो दैट सरफेस का भी फर्क 0 होगा। सेम लॉजिक से इसमें माइनस की क्या प्लस की क्या phi 4 is also 0। दैट मीन्स 1 2 3 4 ये हो गया। अभी टॉप और बॉटम फेस से निकालना। ठीक है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया मान लो फिफ्थ का। तो फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस पूरा मेहनत करवा रहे हैं। फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस ये बताना। अगेन दिस इज इंटीग्रल E डॉट ds। Now before starting only you can tell something very interesting is going to happen. If you observe on this fifth surface, जो हमारे ऊपर वाला surface है यहाँ से, so on this surface is the electric field changing or is it constant?
जो हमारा फिफ्थ सरफेस है ऊपर वाला, इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट चेंजिंग और इज इट कांस्टेंट? कोई बता सकते हैं? Constant. Yes. So on the fifth surface, the electric field is constant because y coordinate is fixed. जो भी 2 meters है y coordinate. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसलिए 4i क्या minus 4 plus 2 6 into 3 18 जो क्या डॉट, इसको देख सकते हैं हम लोग। हाँ, अभी एलिमेंट भी थोड़ा वाइजली चूज करते हैं। तो इसमें क्या एलिमेंट लेंगे? a into dx। बेसिकली हमारा एलिमेंट ऐसे कुछ है, कलर अलग कर देते हैं। इसलिए our element, this is the x coordinate dx। ठीक है, तो अगर हमको पूरा सरफेस चाहिए तो हमको छोटा छोटा एलिमेंट ऐसे लेना पड़ेगा जिसको ऐड करके पूरा सरफेस। ठीक है, now what is the direction of this area? इसका डायरेक्शन क्या लेंगे बताइए? आई कैप, जे कैप, के कैप, J cap. या तो इसका डायरेक्शन होगा जे कैप, बिकॉज हमारा नॉर्मल ऊपर की तरफ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बेसिकली इंटीग्रल इज माइनस 18a into integral dx, x varying from 1 to 3, क्योंकि यहाँ पे x equal to 1 है, यहाँ पे x equal to 3। ये था हमारा, सॉल्व करेंगे तो आंसर 36 into 2 5 6 कितना होगा जो डायरेक्टली होगा? 5 6 का वैल्यू कितना होगा? What is the value of 5 6 plus 2 6 surface? 72. 72 होगा? नहीं, 72 प्लस 72 हाँ, plus 72. प्लस 72 कैसे कैसे होगा? नहीं नहीं सही भी हो सकता है। दिस इज इंटीग्रल e 4i के, तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0 होगा y, तो दिस इज 3 into 2 6 into a dx again into minus g, right? So this is how 6a into integral dx 1 to 12 12 into 2 24 है। ठीक है, 24 आता है, 72 नहीं। अभी 72 की बोला तो ऐसे ऐसे। Sir, I thought that opposite of that will happen. Oh, And that happened. that would have been true if the field was uniform, but अभी यूनिफॉर्म नहीं है ना, क्योंकि y के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी। Okay, sir. क्वेश्चन में निकालना क्या था, सब निकाल दिया। You have to find out the flux to top, bottom, left, back surface. Now total electric flux and Q and close. टोटल निकाल सकते हैं 5 plus 30 plus 10। 5 नेट कितना होगा? 24 minus 72 minus 48 minus 48। Q and close कितना होगा? 5 नेट बाय Q and close जो एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा 5 नेट, जिसे हम लोग Q भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपका आंसर। ओके, चलो क्लियर है सर? बहुत ज्यादा अभी सर दर्द कर रहे हैं।
यस, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो बहुत टफ लग रहा है। यस सर। अभी से सच बोल रहे हैं, टफ लग रहा है। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो गया, टफ प्रॉब्लम्स करना भी आना चाहिए। सर ये प्रॉब्लम एक्चुअली इसका पहले वाला प्रॉब्लम के ही थोड़ा सिमिलर है। सिमिलर भी है बट डिफरेंट भी है। सिमिलर उसमें फील्ड सेट से ये रहता है, एक्स के साथ वेरी करता है, इसमें फील्ड वाई डायरेक्शन के साथ वेरी करता है, वो डिफरेंट। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। एक एक क्वेश्चन आपका थोड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। This is the question number 6. Ratio of electric flux phi1 is to phi2 coming out through the two Gaussian surface shown in the figure. कितना हो गया? इसका वैल्यू कितना होगा? ये तो सॉल्व किया होगा ना आपने? यस, न्यूटन मुकिता, इसका वैल्यू कितना होगा? 5 to 5 नो क्या आंसर? नो तो नहीं है ना? अरे ठीक है, थोड़ा 2 मिनट सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरीवन शुड बी एबल टू आंसर। Sir, 1:1. या आंसर विल बी 1:1। कौन फॉलो ही बोलेगा? Yes, sir. ओके, गुड, सिंपल आंसर तो 1:1 होगा। बेसिकली हमारा गॉसेस लॉ का प्रूफ है। गॉस लॉ प्रूफ किया था ना हमने, सेम प्रूफ है बस। So if you are placing a point charge q at the center, तो phi1 कितना होगा? फर्स्ट सर्फेस phi1 will be q enclosed by epsilon naught, this will be q by epsilon naught। फिर phi2 कितना होगा? q by epsilon naught। phi1 में phi2 कितना होगा? ऐसे कर सकते हैं, you can simply apply Gauss's law and you can find out the flux। And another way you can integrate, उससे भी वही आएगा सही। तो इंटीग्रेशन तो मैंने क्लास में करा दिया, जैसे you can take the suppose you can take a small area, ये पॉइंट पे नॉर्मल बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, phi will be integral E dot ds, ऐसे करके भी आप सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली ये आंसर है आपका q by epsilon if you solve this। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में कभी कभी टफ रहता है, बट आप लोगों को सॉल्व करते हैं। जैसे दिखने में बहुत टफ है, दो स्फीयर दे दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या है, बट एक्चुअली दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, है ना? तो इसलिए प्रॉब्लम दिया गया था। तो ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Flux through curved surface of Gaussian hemisphere of radius r with charge q kept at the center। ये भी आप बता सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं। Can you tell the answer? 2 मिनट सोचो और बताओ। Flux through curved surface of Gaussian hemisphere of radius r with charge q kept at the center। Sir, q by 2 epsilon naught. कैसे? Sir, flux through whole sphere will be q by epsilon naught, and then through hemisphere it will be q by 2 epsilon naught. Yeah, perfect। So simple है, very good। So 7, अगर हमारा पूरा स्फीयर लिया हमने, इसमें प्लस क्यू चार्ज अगर है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? q by epsilon naught, है ना? फ्लक्स टू द स्फीयर
ना अगर आप स्फीयर को हाफ कर दो, इसका आधा कर दो, तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, इट विल बिकम अ हेमिस्फीयर लाइक फ्लक्स ऑफ दिस विल बी, पूरे से अगर क्यूब एप्सिलॉन था तो थ्रू दिस सरफेस इट विल बी हाफ ऑफ द फ्लक्स, दिस विल बी क्यूब एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको बोलते दिस लाइक इंटेलिजेंट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, नॉट डूइंग ऑल द इंटीग्रेशन एंड ऑल, इंटेलिजेंट थोड़ा सोच के सॉल्व कर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिए ताकि आप भी थोड़ा इंटेलिजेंट सोच के सॉल्व करें। क्लियर है सबको विदाउट दिस 6 और 7? डाउट तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, if the hemisphere is immersed in uniform electric field as shown, तो इसके थ्रू हमको क्या निकालना है, फ्लक्स। तो हेमिस्फीयर है बस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी होगी, तो कैसे कर सकते हैं? Can anyone tell how to solve this? सर आंसर 0 होगा क्या? नहीं, 0 तो नहीं है। कोई और बता सकता है कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन सर ने पूछा था दे फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, इसके तो फ्लक्स निकालना है। यस, ठीक है, कैन एनीवन टेल मी द अप्रोच, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? इवन इफ आंसर नहीं है तो चलेगा, आई नीड टू नो हाउ यू आर थिंकिंग, आपका सोच कैसे चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, would anyone like to try? Yes, कौन है अभी? अमीशा, would you like to try? Sir, your voice is very low. I'm not able to hear it. Oh, voice is low. I'll just try to change voice. Now is it audible? I think it is. अभी सुनाई दे रहा है क्या सबको? Yes, Amisha, is it clear now? No, sir. Sir, should I leave and rejoin? आपका तो आज बहुत क्लियर है। Others, are you able to hear me? Sir, your voice is coming but very low. Hello. बाकी लोगों को आ रहा है क्या मेरा आवाज? Follow me, Amisha, Oishi. Yes sir. Yes, Audio. We can try once leaving it. चलेगा। सर इस क्वेश्चन में क्या एक एलिमेंट को मतलब लेना पड़ेगा, मतलब उस सरफेस में हेमिस्फीयर का? सही अप्रोच है, ये हम पूछ रहे थे हाउ टू अप्रोच। तो लेट अस टेक आवर हेमिस्फीयर लाइक दिस, दिस आर हेमिस्फीयर विद द सेंटर हियर, ठीक है, देयर इज द डिस्टेंस r, रेडियस r, दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, so in this electric field has been given, so थोड़ा carefully, the electric field is like this, that means there is a straight line, so there is uniform electric field E, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। So now we have to find out the flux through this entire surface, हमको फाई निकालना, फाई का डेफिनेशन तो एटलीस्ट चेंज नहीं होगा, so this is the integral E dot ds, ठीक है। So now how to go ahead about this problem? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमको वैल्यू पता है, it is always pointing upward,
बट जो हमारे एरिया है वेक्टर है, we try to see at different points. Suppose I see at this point and this point. ये 3 पॉइंट्स हम एरिया वेक्टर को थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं. So at this point, the area vector will be where pointing outward. Yes, ऐसे होगा. Similarly, at this point, the area vector will be pointing like this. At this point, the area vector will be pointing upwards. Okay. So suppose so here the electric flux is V dot ds. If I take this angle as theta, this angle will also be theta. Okay. So one thing to observe carefully, this is not a circle or a ring, half ring. This is a hemisphere, 3D object. Because there is a hemisphere, we have to take an element accordingly. So our element is so again इसका क्या कहते हैं, छोटा सा पार्ट एंगल डी थीटा होगा. This angle will be theta and इसका radius smaller होगा. So ये समझ में आ गया how to take the element. So if you want to make a hemisphere like this, we have to choose an element like a ring. ठीक है, इसका thickness कुछ है, तो एंगल थीटा है, डी थीटा दिया हुआ है. अगर आप रिंग को अलग से भी देखेंगे तो आपको फर्क भी ऐसा रिंग है और उसका थोड़ा थिकनेस, इट हैज अ वेरी स्मॉल थिकनेस. ठीक है, तो सेंटर से हमारा ये एंगल थीटा एंड ये एंगल डी ऐसा. So now solving you can get the answer. So P dot ds होगा ADS cos theta होगा. Now at every point the value of electric field, the magnitude of electric field is same. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, E बाहर आ जाएगा. ds क्या होगा? dl d theta. dl d थीटा क्या होगा? नहीं, dl d थीटा नहीं होगा. ये सरफेस एरिया बताना है. This is basically 2 pi r into r d ऐसा लिखो. So 2 pi r will be the circumference होगी एंड छोटा सा लेंथ होगा r d थीटा. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको एरिया. ठीक है, into cos theta. Cos theta टाइम्स थीटा. So now again we have two variables. We have variable r and theta. तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व करना है. तो सिंपल है सर. r को हम लिख सकते हैं कैपिटल R इंटू साइन थीटा. You can write it like this. स्मॉलर हो तो ये रेडियस होगा.
हमारा डायग्राम बहुत छोटा है. This smaller equals to r into sin theta. ठीक है. So solving this, you can get the answer. E into 2 pi capital R. R will be sin theta cos theta into theta. And theta will vary from what to what? ये बता सकते हैं. थीटा का मतलब 0 से 90 डिग्री. 0 to pi. 0 degree was at this point and pi by 2 is at this entire. ठीक है. इसका सॉल्व कर सकते हैं. sin theta cos theta को sin 2 theta by 2 लिख सकते हैं. सॉल्व कर. So this turns out to be e into pi r. सॉल्व करेंगे तो ऐसा है. चलो क्लियर है. Is it clear to all? चलो शांत है. कुछ क्लियर नहीं. There is one more, what you can say, more intelligent or logical way of solving this. ठीक है. Suppose I have a example. Suppose I have something. A surface which is like this. एक सरफेस दिया हुआ आपको. यहाँ पे सर्कुलर है, बट जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा. एंड अगेन जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड. यार इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. So again they ask to find out the flux through the surface. जो हमारा कर्व ये जो ऊपर वाला सरफेस इससे फ्लक्स है. तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. E into pi r. क्यों लिख सकते हैं ऐसा? Because the definition of flux is E dot S. Basically this electric field इसका हमने डायरेक्शन में लिखा था. This is the direction of electric field and this is the direction of area vector. ठीक है. तो इसको ऐसे लिखते हैं E into S cos theta. ठीक है. So what is this S cos theta? This you can say this is the projection of area along the direction of electric. समझ में आ गया? That means जब भी हम लोग हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर निकाल रहे थे, जैसे ये पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसे था, ये पॉइंट पे ऐसे, ये पॉइंट पे ऐसे, ये पॉइंट पे, जो भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर था उसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड कंपोनेंट निकाल रहे थे. ये थीटा एंगल था, so we took the component in this direction. Similarly इसमें ऐसे डायरेक्शन. तो हर केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ कंपोनेंट निकालते हैं. That is why this S cos theta is the projection of area along the electric. तो ये एरिया का प्रोजेक्शन क्या है? See carefully. This will be this.
इसीलिए तो प्रोजेक्शन है, जो मैंने ब्लू से कलर हाईलाइट किया। फिर इस केस में भी जो हमारा प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया इधर। पूरा जो हेमिस्फीयर है उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फायर। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं E into फायर, ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया सबको, कोई डाउट इसमें? यस, दिया, वैशी, अविशु, any doubts in this? Yes, clear है अच्छे से? दिया, is it clear? Yes, sir. Okay, very good. एक ही प्रॉब्लम टफ होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया होगा देन यू वुड बी रिलेशिंग दिस क्लास, आपको क्लास में बहुत मजा आ रहा है। अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा, खुद से नहीं किया होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा या फिर बहुत टफ लगेगा। सर यहाँ पे तो हेमिस्फीयर क्लोज था, फिर बेस से भी कुछ फ्लक्स बनेगा। हेमिस्फीयर क्लोज था, नहीं ऐसे ही एक्चुअली दोनों क्वेश्चन में सेम ही है। अरे क्लोज मतलब कैसे, क्वेश्चन अच्छा पूछा है। बेसिकली हेमिस्फीयर तो ऐसे ही होगा ना, क्लोज मतलब क्या होता है, ऐसे ही होगा। ठीक है, प्रॉब्लम है तो ओपन और क्लोज सर क्या? फिर मतलब नीचे जो बेस है, बेस से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, बेस भी तो क्लोज्ड है। ओ, हमारा एक्चुअली ऐसे होता है, ये हमारा हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का मतलब ही तो ये होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करते क्लोज है तो फिर क्लोज में थोड़ा डायग्राम ऐसे रहता है तो और प्रिसाइज रहता है। दिस इज क्लोज हेमिस्फीयर। बट अगर जस्ट हेमिस्फीयर मेंशन किया तो उसको ओपन ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम ठीक है सर। सर अगर ये कंडक्टिंग हेमिस्फीयर होता तब क्या होता? कंडक्टिंग, हाँ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की बात कहाँ से है, हम लोग तो फ्लक्स निकाल रहे हैं। नहीं, वो अगर कंडक्टिंग होता तब, अगर नॉन कंडक्टिंग होता तब तो अलग होता ना दोनों केसेस में। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको चार्ज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। और अगर एक चार्ज को अगर उसका मतलब कोई भी एक स्पेस में अगर मतलब हेमिस्फीयर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और वो अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो मतलब हेमिस्फीयर हो तब क्या होगा? ओके, तो उस केस में अलग होगा। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रेट नहीं होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। वो हम बताएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया नहीं चला, आगे बताएंगे। एक दो क्वेश्चन बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तुम क्या बता रहे थे? If you would have solved all the questions by yourself, तो आपको बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का तो बड़ा अच्छा डायग्राम। बेसिकली एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ब्लू कलर का पॉजिटिवली चार्ज रॉड और एक कंडक्टर ब्लैक कलर। सर ये कंडक्टर का कोई स्फीयर है, मतलब कंसेंट्रिक सेल्फ स्फीयर है? नहीं नहीं नहीं, ये एक सिंपल कंडक्टर है ना, रॉड की तरह है। नहीं मतलब जो कंडक्टर है वो जो मल्टीपल सरफेस वाला। एक ही कंडक्टर है, ओके। ये ब्लैक कलर का है।
एंड जो डॉटेड लाइन से ये सरफेस है हमारे गॉसियन सरफेस S1 S2 हाँ S3 हाँ हाँ ठीक है. So they have asked us S1 S2 S3 S4 S5 से क्या क्या होगा. ठीक है. तो क्या निकलना है? वी हैव टू फाइंड आउट नेट चार्ज एंड फाई नेट. इसको बस साइन देना था. तो इसको इधर से बता सकते हैं. जो हमारा फर्स्ट सरफेस है इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? S1 दिस फर्स्ट सरफेस इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव कि नेगेटिव? यस सर. Oishi can you tell? सर नेगेटिव. फर्स्ट S1 ये S1 जो दिखा रहा है वो पॉइंट नहीं कर रहा है. पॉइंट नहीं कर रहा. Yeah. This is S1 right? तो इसमें पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्यों नेट? जल्दी जल्दी बताओ. नेट चार्ज पॉजिटिव कि नेगेटिव? Sir, positive. Positive. नेट चार्ज पॉजिटिव क्योंकि इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज है ना. तो दिख रहा है. तो फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? यस. Positive. फ्लक्स इज पॉजिटिव. Yes. Because flux is q by epsilon naught. Q net by epsilon naught. Okay. S2 क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? Negative. यस. बाकी लोग बता सकते हैं. अमीशा S2 नेगेटिव होगा सिंपल. बिकॉज नेगेटिव चार्ज है. तो ये तो इजी था. तो 5 भी नेगेटिव होगा. S4 से क्या होगा? S4 थोड़ा इंटरेस्टिंग. आप मत तो प्रॉब्लम बाकी को बताना. यस. रिया कैन यू टेल S4 से कितना Q होगा और कितना 5 होगा? यस. Sir, repeat कीजिए. क्वेश्चन पूछ रहे हो. फोर्थ सरफेस से कितना Q निकाल रहे हैं, कितना 5 होगा? नेट चार्ज एंड नेट फ्लक्स. फोर्थ सरफेस 11 सरफेस. Sir, positive, negative. तो नेट Q नेट पूछा. सर S4 में निकालना है. हाँ. सर S4 में तो वो नेगेटिव होगा. नहीं नेगेटिव नहीं होगा. Sir, 0 होगा. तो आप मत बताओ ना. ठीक है. S4 में 0 होगा ना सिंपल. बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज जितने होते हैं नेगेटिव होगा ना. कंडक्टिंग रॉड है. ठीक है. तो S4 से 0 होगा. बट सर चार्जेस आर नॉट इन इक्वल नंबर. मतलब हमें तो पता नहीं. ओह अच्छा डाउट है. ठीक है. चलो पीछे बेसिकली हमारा ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. इफ वी हैव बीन गिवन अ तब उसके कंडक्टर दिया हुआ है. ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गए. There is an uncharged conductor. So if you bring some charged conductor near this, so this will induce negative charges in this. जो negative charges को attract करेगा. And because negative charges एक साइड में segregate हो गए तो उतने amount में ही positive charges right side में. तो net charge again 0 इसमें conductor में, but charges segregate हो गए थे. तो ये दोनों का magnitude equal. ठीक है. तो सबको समझ में आ गया? थोड़ा easy क्वेश्चन है. कैसे कर सकते हैं? बेसिकली इसमें गॉसेस लॉ का आपका एप्लीकेशन दिख रहा है. हाउ विदाउट इवन नोइंग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वगैरह यू कैन फाइंड आउट द फ्लक्स. कोई डाउट इसमें? आई विल मूव अहेड नाउ. किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं.
धीरे धीरे भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। Sir, Yeah. sir, then for S3 it will be positive and S5 also positive. या SCNS5 बहुत पॉजिटिव, Hmm. ठीक है। उसमें ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा S3 में, NS5 में भी सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से प्योर फाइन करेंगे, ठीक है विषय। Yes, sir. So coming to question number 10, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा ये तो आप ओरली बता सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 नेट बताना है, कितना होगा Q1 Q2 के टर्म से बता सकते हैं, कॉलम याद मत बताओ, बाकी कोई बताएंगे, ठीक है। मुकिता कैन यू व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द सरफेस इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 बता सकते हैं। यस, तो नहीं आ रहा क्या अविंशी कैन यू हाँ हेलो। हाँ बताइए। कितना होगा सर आउटर सरफेस में तो वो 0 हो जाएगा चार्ज। नहीं नेट फ्लक्स कितना है वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछ रहे हैं। नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस जो हमारा ब्लैक सरफेस है, डॉटेड सरफेस, कितना होगा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वुड एनीवन एल्स लाइक टू ट्राई नेट फ्लक्स Negative. कितना, Negative. हाँ नेगेटिव, तो वैल्यू कितना होगा, आई जस्ट राइट इट डाउन, क्या वैल्यू होगा उसका फाइनाइट, दिस Sir, इज minus 5.9 into 10 to the minus 9 by epsilon naught. हाँ तो क्यू नेट कितना होगा, दिस विल बी Q1 minus Q2 minus Q3 ऐसे होगा, because these are the only charges which are present inside the Gaussian surface. तो Gaussian surface के अंदर में ये तीन charges, तो ये Q1 minus Q2 minus Q3 and then Q1 Q2 का वैल्यू पता है आपको, Q1 Q2 Q3 का वैल्यू, तो सॉल्विंग विल गेट आंसर, ये दोनों तो इक्वल है, Q1 Q3 इक्वल है, एक्चुअली प्लस ही करेंगे तो साइन बाद में ऐड करते हैं। Q1 और Q3 का मैग्नीट्यूड अपोजिट है, तो दिस इज minus 5.9 into 10 raised to minus 9 बार, ठीक है। तो क्लियर है। नाउ इन दिस देयर इज वन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो बाहर के चार्जेस है उसको तो कंसीडर ही नहीं किया, वी आर नॉट कंसीडर द चार्जेस व्हिच आर आउटसाइड, राइट, है ना। बाहर भी दो तीन चार्ज है, राइट, Q4 एंड Q5, if I just show you this, यहाँ पे दो चार्जेस है Q4 एंड Q5, है ना। तो इसका कैसे होगा, इनकी वजह से भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्या, यस, will the flux not change due to Q4 Q5, ठीक है, आप सोच सकते हैं, आपके होमवर्क
Okay. Sir, I think no. No. Why? According to Gauss law. हाँ वो तो है ही. ठीक है. This सर means what? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रल कर रहा है. नहीं बट दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना. Q4 का मैग्नीट्यूड अलग है, Q5 का अलग है. Right? लेकिन हाँ तो वैसे नहीं करते. तो सिंपल है कि एक्चुअली वो डिपेंड नहीं करता. तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस डिपेंड्स ऑन ओनली चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड. बाहर के चार्जेस से उसका कोई फ्लक्स नहीं आता. नेट फ्लक्स फ्लक्स आता है बट नेट फ्लक्स नहीं आता. ये डिफरेंस. तो ये एक चीज एक्चुअली इसीलिए क्वेश्चन किया था. जो भी चार्ज बाहर है उसके वजह से हम लोग फ्लक्स नहीं करेंगे. ठीक है. कितना क्वेश्चन बचे? 4-5 और बचे. तो लास्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. तो बताइए 11 का आंसर क्या होगा? 11 कैसे करेंगे? फर्स्ट total flux coming out through the cube and through each of the cube cells. If charge q is placed at the positive center of the cube. Okay. तो कैसे करेंगे इसको? Let me just draw the diagram so it is quite clear to all. The diagram. So we have been given a cube. ऐसे क्यूब दिया हुआ आपको. और ये है. ठीक है. And we have been given a charge which is placed inside the cube. Body center पे दिया. Plus. So now how to solve this? 5 to the entire cube कितना होगा? It's easy. What is the flux to the entire cube? Charge is placed inside the cube. The flux कितना होगा? Sir, Q by epsilon naught. Yeah. Flux will be q by epsilon. So flux to the entire cube तो निकल गया q by epsilon. Now you want to find out the flux through one of the surfaces. एक surface की तो निकालना. कोई मान लो ये surface है. So now how to find out the flux through this? कैसे कर सकते हैं? Can anyone answer? Sir, Q by 6 epsilon. q by 6 epsilon. Cube. Sir, symmetry has Symmetric है इसलिए. ठीक. So basically correct answer. So 5 through one of the faces will be q by epsilon naught divided by 6. So flux through all the 6 cubes, all the 6 surfaces is q by epsilon naught. And because this is symmetric figure, so हर एक face से same amount of flux pass होगा. ऊपर नीचे आगे. All the 6 faces, the amount of flux will be same. तो एक flux से कितना होगा? q by epsilon naught divided by 6. And then 5 through क्यूब एंड फेस. तो ये पार्ट ए हो गया. ना पार्ट बी कैसे करेंगे?
पार्ट बी में q is placed at one corner of the cube. तो क्यूब के कॉर्नर से निकालना, तो ये पार्ट बी है. पार्ट बी. So again, it is a cube, but where is the charge placed? The charge is placed at the corner of the cube. So now, what is the flux passing through this cube? Sir, 0. 0. Sir, q by 24 epsilon naught. 0 तो नहीं होगा, जब कम Sir, होगा. because the charge is not enclosed in the figure. The entire charge is not enclosed, but some part of the charge is enclosed. Oh, अच्छा. मतलब ये आपने शायद सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में. Sir, q by 24 epsilon naught. क्यूबेट इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा कम हो गया, तभी कम. तो इसमें ये चार्ज कितना है क्यूब के अंदर? बेसिकली इफ यू डिवाइड दिस क्यूब, So Q by 8 epsilon naught. हाँ, इसमें 8 क्वाड्रेंट्स होता है, राइट? 3D में 8 क्वाड्रेंट्स होता है, तो ये क्यूब में कितना आएगा? सिर्फ 1/8 पार्ट आएगा. 1/8 of the entire cube. That is why इसमें चार्ज कितना है? क्यूब बाय 8 डिवाइड बाय एप्सिलॉन. ठीक है, ये सब तो इसके थ्रू तो आपका इतना आ गया. एंड अभी आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस. ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आपका टाइम हो गया. होमवर्क करिए. सर अभी इसके बाद क्या मैथ्स है? आपका मैथ्स क्लास है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. तो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 11. 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए. So try to do them before the next class. नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. उसके बाद डिस्कशन जब अकॉर्डिंगली जब टाइम मिलता है. सर पार्ट सी एक बार बता दीजिए. पार्ट सी नहीं, पार्ट सी नहीं बताएंगे. कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए. अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, पार्ट सी के ऊपर हम लोग सिमेट्रिक मेथड से नहीं कर सकते, इतना पता. जो मेथड हमने अब तक लगा उससे नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. I think you can end the class here. Which topic next class? Gauss's law का जो टॉपिक है, I think ये स्टार्ट करेंगे. पोटेंशियल. I'll inform you. Okay. So thank you very much. I'll end the class here. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.